Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। I hope you're all doing good. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। If you see, we've been studying through the Gospel according to Mark. अगर आपने देखा है तो हम मरकुस का सुसमाचार का पुस्तक पढ़ रहे हैं We just finished through chapter 1. और अभी हमने अध्याय 1 को खत्म कर दिया है। We saw John the Baptist ministry in the beginning, और हमने शुरुआत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सेवकाई देखा। and then we saw the baptism of Jesus, उसके बाद हमने यीशु मसीह का बपतिस्मा देखा and then we saw Jesus starting his ministry. और फिर हमने देखा यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की He calling 4 of his apostles, और उन्होंने 4 शिष्यों को बुलाया and then we see the healing and deliverance ministry. और फिर हम देखते हैं उन्होंने चंगाई दिया, उन्होंने छुटकारा दिया, वो सेवकाई देखा। And then we come to chapter 2. और अभी हम अध्याय 2 में आते हैं। Here, there's an important aspect. और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। See, in chapter 2, we get to see Jesus really opening his nature as the deity. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपना चरित्र दिखाते हैं और वो परमेश्वर है ये यहाँ पे दिखाते हैं। In chapter 2, verse 1 onwards, as we read, we will see Jesus beyond the Messiah being the Son of God revealed to people. और यहाँ पे अध्याय 2 में हम देखेंगे यीशु मसीह जो मसीहा है वो परमेश्वर के पुत्र है और ये वो लोगों को बताते हैं। Chapter 2. अध्याय 2। And again he entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। Immediately many gathered together so that there was no longer room to receive them, not even near the door, and he preached the word to them. फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। Okay, there's a lot of people now who know about Jesus. अभी हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं। Jesus couldn't go everywhere in public. He has to choose remote places, but also some houses. और अभी यीशु मसीह जो है वो भीड़ में नहीं जा सके और वो कुछ घरों में जा रहे थे। There also people came. और वहां पे घर पर भी लोग आ रहे थे। The news spread that he was at the house. और समाचार जो है वो फैल गया कि वो घर पर है। Now Jesus is famous. और यीशु मसीह प्रसिद्ध हो रहे हैं। So we see that he's coming back to Capernaum, which seems to be his headquarters from ministry. और अभी हम देखते हैं कि यीशु मसीह कफरनहूम में आते हैं जो उनका मुख्यालय है सेवकाई का। So people who heard about him have come now, waiting for his return, and once he comes, they just come around that house. There is no room at all. और अभी ये लोग सब लोग आते हैं जब यीशु मसीह फिर से कफरनहूम में आते हैं और वो इतने आते हैं कि घर पूरा भर जाता है। But they were probably looking for miracles. और वो लोग चमत्कार होने के लिए देख रहे थे। What did he do? और उन्होंने क्या किया? He preached the word to them. उन्होंने वहां पे प्रचार किया, वचन सुनाया। Of course, if Jesus preaches, it's going to be one of the best, amazing teachings. और मैं यही मानता हूँ कि जब यीशु मसीह प्रचार करेंगे तो वो सबसे बढ़िया प्रचार होगा। Pin drop silence. और वहां पे सब चुपचाप रहेंगे। And this crowd around watching Jesus teaching. और सारा भीड़ यीशु मसीह को देख रहे हैं प्रचार करते हुए। Imagine with me, if you are one of them standing in that crowd, probably it's your house, how would you feel? अभी आप मेरे साथ सोचिए कि आप भी वहां पे भीड़ में खड़े हैं और वो आपका घर है जहाँ पे यीशु मसीह आए हैं। And then in verse 3. और फिर वचन 3। Some people came bringing to him a paralytic carried by 4 of them. और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठाकर उसके पास ले आए। People now bring paralyzed person. और अभी लोग लकवे के रोगी को लेकर आते हैं। Bringing a paralytic who was carried by 4 men. 4 men. There's no mention of who these 4 men are. और वो 4 मनुष्य जो है वो लकवे के रोगी को उठाकर ले आते हैं। इनका नाम यहाँ पे बताया नहीं गया है। Even the paralytic, the person is identified as a paralytic. His name is also not mentioned. और जो लकवे का रोगी है उसे लकवे का रोगी करके कहा गया है, उसका नाम नहीं लिखा है। No mention of who is this paralytic man. No mention of how these 4 men are related to him or who they are. और इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि वो कौन है, उनका नाम क्या है।
That is the best part. और वो सबसे बढ़िया भाग है। It could be anybody. ये कोई भी हो सकता है, It could be any of us. या हम में से कोई हो सकता है, We could be one of the four. हम वो 4 मनुष्य में से एक हो सकते हैं, Or maybe we are the ones who need the touch of Jesus, like the paralytic. या तो फिर हमें भी यीशु मसीह का छुअन चाहिए, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को छुआ। And when they could not come near him because of the crowd, verse 4, they uncovered the roof where he was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। So probably the guys couldn't take this paralytic man inside because of the crowd. People didn't move, it's like Mumbai trains, you can't move in sometimes. And then they probably carried this man up to the roof. हो सकता है कि भीड़ इतनी जमा हो गई थी कि वो लोग उस लकवे के रोगी को अंदर नहीं ला सके। जैसे मुंबई में अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आप अंदर नहीं जा सकते, उसी तरह ये लोगों ने फिर छत के ऊपर जाके वो वहां से आने का उन्होंने कोशिश किया। Imagine with me, how could have they carried this man and gone to the terrace? अभी आप मेरे साथ सोचिए कि वो लोग इस लकवे के रोगी को कैसे उठाकर ऊपर टेरेस में ले आए, छत पर ले आए। Some say that there was a stair right next to the house. Normally, every house is built with a stair outside, so they could have carried this person on top of the terrace. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद घर के बाहर जो है सीढ़ी थी, इसके वजह से वो लोग लकवे के रोगी को सीढ़ी के द्वारा ऊपर छत पर ले आए। If there was no stairs, imagine the kind of hard work these guys had to go through. अगर वहां पे सीढ़ी नहीं होती तो सोचिए उनका क्या हाल होता। How far are you willing to go to bring a person to Jesus? आप कितने दूर तक उस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास ले जा सकते हैं? Is there anybody in your life who needs to meet Jesus? क्या ऐसा कोई है आपके जीवन में जिसको यीशु मसीह की जरूरत है? Your neighbors? शायद आपके पड़ोसी, your own father, mother, brother, sister, wife, children? या फिर आपके खुद के भाई बहन माता पिता। You see, oftentimes we think if I am saved, I'm fine. बहुत बार हम ये सोचते हैं कि अगर मैं बचाया गया हूँ तो मैं ठीक हूँ। We don't care about the others. हम दूसरों के बारे में चिंता नहीं करते। Not that we don't care about them. In fact, we don't go to the extent of taking extra efforts to bringing them to Jesus. ऐसा नहीं है कि हम उनका केयर नहीं करते, लेकिन हम उतना मेहनत नहीं करते कि हम उन्हें यीशु मसीह के पास ले आए। I personally believe these 4 men were not related to the paralytic, but still they went through enormous amount of hardship to just get this man to Jesus somehow. मैं ये मानता हूँ कि ये जो 4 मनुष्य है वो शायद उनके वो लकवे मारने वाले रोगी का कोई रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो जोश था, उनके अंदर जो मेहनत था कि उन्होंने मेहनत करके उन्हें यीशु मसीह के पास लाया। Now they removed the roof from top. और अभी उन्होंने छत से और अभी वो छत पर जाके वहां पे छत निकालने की कोशिश कर रहे थे। They are breaking open the roof. और वो लोग छत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। And as they broke through, they are sending this man. He's in a cart, like a stretcher. So they hang it probably, I'm visualizing, with 4 ropes on each corner and bringing this man down to Jesus from top. और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि जब उसे छत से नीचे लाया गया तो यहाँ पे कहा गया है कि उसे लटकाया गया, और मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने 4 रस्सी बांधकर उसे नीचे लाया होगा। Imagine the situation of the paralytic. Can he do anything? अभी आप सोचिए लकवे के रोगी का जो परिस्थिति था, क्या वो कुछ कर सकता था? Can he move? क्या वो हिल सकता था? Can he help himself? क्या वो खुद की मदद कर सकता था? He was in a dead state, basically like a vegetable. He couldn't do anything for himself. वो एक मरे हुए स्थान पर था और वो खुद से कुछ नहीं कर सकता था। I want you to think about this. और मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। Someone who can't do anything about their salvation, about their life, is almost dead in sin, paralyzed because of sin, needs Jesus, and you could be, I could be one of the 4 persons to bring that person to Jesus.
कोई एक व्यक्ति है जो खुद को भी नहीं बचा सकता, वो खुद का भी उद्धार नहीं कर सकता, और उस व्यक्ति को उस 4 मनुष्य की जरूरत पड़ी। उसी तरह हमें भी ऐसे लोगों की जो खुद से कुछ उद्धार नहीं कर सकते, जिनको मदद की जरूरत है, हमें भी उसका मदद करना चाहिए, उन्हें यीशु मसीह के पास ले जाना चाहिए। If it was your house, अगर वो आपका घर होता, Jesus is teaching, everybody is interestingly listening. और यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, और सब लोग सुन रहे हैं, And then you hear the sound on the roof, tock, tock, tock. और आप छत पे आवाज सुन रहे हैं कि कोई टॉक 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 कर रहा है, Would you not be disturbed? तो क्या आपको डिस्टर्ब नहीं होगा? Of course, yes. जरूर होगा। You would say, son, go and see who's up there. Just tell them to be quiet. आप जाके बोलेंगे, अरे बेटा देखो, छत पे जाके देखो, उनको बोलो थोड़ा शांत रहने के लिए। No, they didn't stop. लेकिन वो रुके नहीं, They said, we will break it somehow today. और उन्होंने कहा, हम कैसे ना किसी तरह हम वो छत को तोड़ेंगे, And we will get this man to Jesus. और हम इस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास ले जाएंगे। Whether it's a roof, whether it's a door, whether it's the crowd, it doesn't matter. We will get this man to Jesus. चाहे वो छत हो, चाहे वो भीड़ हो, चाहे वो दरवाजा हो, चाहे कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन हमें इस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास ले जाना है। In those days, the roofs were made out of strong clay and stones. उस समय में जो छत था वो रेत और पत्थर से बनाया जाता था, So they could have beaten it really strong to break it. तो हो सकता है कि उन्होंने बहुत तोड़ा होगा, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत था। And verse 5. और वचन 5, When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, son, your sins are forgiven you. यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोग से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। Jesus saw whose faith? यीशु मसीह ने किसका विश्वास देखा? He saw the faith of those 4 men. उन्होंने वो 4 मनुष्य का विश्वास देखा, And then he spoke to the paralytic. और फिर उन्होंने उस लकवे के रोगी से कहा, Son, हे पुत्र, son, हे पुत्र, your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए। Jesus immediately called this man son. यीशु मसीह ने जल्द से उस व्यक्ति को हे पुत्र करके कहा। He immediately had a relationship or made a relationship with this man. और बहुत ही जल्द यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के साथ एक रिश्ता बनाया, And he called him son. और उन्होंने उसे हे पुत्र करके कहा। He expressed the heart of a father. उन्होंने यहाँ पे अपने पिता का भावना जताया। This paralytic man was so sick, but Jesus still saw him and wanted to deal with him with a relationship first, calling him son. और यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को देखा, क्योंकि वो बीमार था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी और उसे एक बेटे की तरह उसे बुलाया। Jesus cares for you. यीशु मसीह आपका भी ख्याल रखना चाहते हैं। You may think that I don't know Jesus, I have no relationship with him, but he sees you as his own child. आप सोचते होंगे कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ, मैं यीशु मसीह को नहीं पहचानता हूँ, लेकिन यीशु मसीह आपको अपना बेटा बेटी मानते हैं। He said, your sins are forgiven. That's the first thing he said. वो कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए। सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा। Now this is where the interesting part starts. और यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। Now some of the experts in the law, like scribes, were sitting there. अभी कुछ एक्सपर्ट जैसे कि कोई शास्त्री वहां पे बैठे हुए थे, And they were reasoning in their hearts. और वो लोग अपने मन ही मन में बात कर रहे थे। I like the New Living Translation. It says they were sitting there and turning these things over in their minds. और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि वो अपने मन ही मन में विचार कर रहे थे। See, these scribes or these, experts in law basically are teachers of the law of the Old Testament. और ये जो शास्त्री लोग हैं, ये जो है वो शिक्षक है, जो लोग नियम जो है लोगों को सिखाते हैं। And they take it, they trained well in it, and they develop it, and they give applicational, rituals, systems, and everything to the people. और वो इसे लेते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं और उसको समझकर वो दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि इसके पीछे कैसे चलना चाहिए। वो रीति रिवाज बनाते हैं, परंपरा बनाते हैं, जो चाहते हैं कि लोग उस परंपरा या रीति रिवाज के पीछे चले।
Correct. So they were only humans and were teaching human traditions. तो वो सिर्फ मनुष्य थे और सिर्फ वो मनुष्य परंपरा सिखा रहे थे। Why were they waiting there? वो वहां पे क्यों रुके हुए थे? Because they've heard about Jesus and they want to investigate now. क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना था और वो उसका छानबीन करना चाहते थे। But why would they have to think in their heart about this? लेकिन उन्होंने अपने दिल में ऐसा विचार क्यों किया? Because they were told and they have taught that nobody has the authority to forgive sins. Even the Messiah cannot except God. क्योंकि उन्हें कहा गया था और ये उनको बोला भी गया था, सिखाया गया था कि कोई भी किसी भी मनुष्य का पाप को क्षमा नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। So that is why they are saying, how could this man speak this way? He is blaspheming. इसीलिए ये लोगों ने कहा कि ये ऐसे कैसे बात कर सकता है, ये परमेश्वर का निंदा कर रहा है। They saw only the man Jesus. क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ एक मनुष्य यीशु मसीह को देखा। Who can forgive sins but God alone? कौन पाप को क्षमा कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। Did Jesus really blaspheme? क्या यीशु मसीह ने सच में परमेश्वर का निंदा किया? No. नहीं। But is it true that only God can forgive sins? लेकिन क्या ये सच है कि परमेश्वर ही पाप का क्षमा दे सकता है? Right. सही है। So they were right. तो वो लोग सही थे। But if you see here, Jesus was recognized by them as simply a man who blasphemed against God. अगर आप देखेंगे तो वो लोग जो थे, शास्त्री लोग, वो उनका यही मानना था कि जो यीशु मसीह है वो सिर्फ मनुष्य है। How could he forgive sins that God can only do? और वो कैसे पाप का क्षमा दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही वो कर सकता है। They thought about all of the things were in their hearts. और ये सब कुछ वो सोचने लगे। कहाँ सोचने लगे? अपने मन में सोचने लगे। They were not talking to each other. और वो लोग आसपास भी बात नहीं कर रहे थे। It's only in the heart. वो सिर्फ अपने दिल में बात कर रहे थे। Verse 8. वचन 8। Now immediately when Jesus realized in his spirit that they were contemplating such thoughts, he said to them, why are you thinking such things in your hearts? यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? Why do you reason about these things in your hearts? क्यों तुम अपने मन ही मन में ये विचार कर रहे हो? How could a man know what's in another man's heart? एक मनुष्य, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दिल में क्या हो रहा है ये कैसे जान सकता है? It's impossible. ये नामुमकिन है। Only God can know what's in another person's heart or in a man's heart. सिर्फ परमेश्वर ही जानते हैं कि किसी मनुष्य या व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है। Jesus knew their thoughts. यीशु मसीह उनके विचार को भी जानते थे। They only saw him like a man. उन लोगों ने बस उन्हें एक मनुष्य की तरह देखा। But Jesus saw them like God would see them. लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें देखा जैसे परमेश्वर देख रहे हैं। And he wanted to help them understand. और वो उनकी मदद करना चाहते थे कि वो समझ सके। If you wait here for a minute and ask yourself this question. अगर आप यहाँ पे ही इंतजार करें और आप ये सवाल पूछे। These guys are looking at Jesus and thinking something in their heart, saying, how could this man do this? ये जो लोग हैं वो यीशु मसीह की ओर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक मनुष्य ऐसा कैसे कर सकता है। Because in the word of God they know, from the word of God they know that God can alone forgive sins. क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही ये लिखा है कि सिर्फ परमेश्वर ही पाप की क्षमा दे सकता है। And also they would have read in the scripture that only God can see what's in a man's heart. और उन्होंने वचन में ये भी पढ़ा होगा कि सिर्फ परमेश्वर ही मनुष्य के मन को जानते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। These guys are thinking this in their heart, and now God sees their heart and is straight away speaking. अभी ये लोग जो है मन ही मन में विचार कर रहे हैं और यीशु मसीह देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। And if Jesus can talk what's in their heart, which they have not expressed outside, then is Jesus just a man or Jesus is God? अगर ये जो व्यक्ति लोग हैं आसपास में किसी लोगों से उन्होंने बात नहीं किया लेकिन मन ही मन में बात किया और यीशु मसीह ने ये जाना कि वो क्या बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बोले कि यीशु मसीह कौन है, सिर्फ मनुष्य है या परमेश्वर है? That's why I said now Jesus proved his deity that he can forgive sins.
इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि यीशु मसीह परमेश्वर है और वो ही सिर्फ पाप का क्षमा दे सकते हैं। Jesus uncovers their thoughts in front of everybody. और परमेश्वर ने उनके विचार को जो है सबके सामने लाया। You see, we have to be careful sometimes in judging other pastors when they're doing ministry. तो इसीलिए हमें भी बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें पासवान का न्याय नहीं करना चाहिए जब वो सेवकाई करते हैं। When we don't understand what they're saying or what they're doing, don't judge them. जब हमको मालूम नहीं होता है कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, तो हमें उनका न्याय नहीं करना चाहिए। Don't keep stirring your heart about other pastors thinking wrong things. और आप अपने मन ही मन में ऐसा कुछ ना कुछ विचार ना कीजिए और उनके बारे में गलत आप ना सोचिए। Verse 9. वचन 9, Jesus says, which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven you, or to say, stand up, take up your stretcher and walk? 9वां वचन, सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? Which is easier to say? क्या आसान है कहना? If you tell a person that your sins are forgiven you, people will be watching and they won't know whether something is happening or not. अगर आप किसी को बोलेंगे कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो वो लोग सिर्फ देखते रहेंगे कि उनका पाप क्षमा हुआ है या नहीं हुआ है। So it's easy to say. तो वो आसान है कहना। But it's hard to say, take up your bed and walk, because people are watching now. If that guy doesn't get up and walk, it's a problem. लेकिन ये मुश्किल है कहना कि अपना खाट उठाकर चल, क्योंकि अगर वो मनुष्य नहीं चलता है तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। You get the point? क्या आपको समझ में आ रहा है? Which is easier to say? तो क्या आसान है कहना? And it's also easy to say your sins are forgiven. और ये भी आसान है कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए। Because if Jesus says your sins are forgiven, it will be forgiven. क्योंकि अगर यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो वो क्षमा होंगे। If he says rise up and walk, that person will rise up and walk. अगर यीशु मसीह कहते हैं कि उठ और चल, तो वो व्यक्ति चलेगा। For a human being like you and me, it's hard to say these things. लेकिन एक मनुष्य को, आप और मेरे जैसे लोगों को ये कहना बहुत मुश्किल है। But we can surely forgive other people's sins, don't we? लेकिन हम दूसरे लोगों के पाप को क्षमा कर सकते हैं। But in this case, when Jesus says your sins are forgiven, nobody saw anything happening, so they questioned. But when Jesus said, rise up, take up your bed and walk, he got up. और जब यीशु मसीह ने उसे कहा तेरे पाप क्षमा हुए हैं, तब लोगों ने सवाल पूछे। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा अपने खाट उठा और चल, और वो चलने लगा, तो सब लोग आश्चर्यजनक हुए, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो हुआ। So if Jesus says take up your bed and walk, it happens. That means when Jesus says your sins are forgiven you, also that happens. जब यीशु मसीह ने कहा अपना खाट को उठा और चल, वो हुआ। और जब यीशु मसीह ये कहते हैं कि तेरे पाप को क्षमा मिल गई है, तो वो असल में हुआ है, उसे पाप की क्षमा मिली है। I tell you, stand up, rise up, take up your bed and walk, go home. That's what Jesus said in verse 11. और वचन 11 में वो कहते हैं कि मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। Now Jesus responds not about raising up this paralytic. He talks about, now immediately that man rose up and took his bed and went out in front of them all. और वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। They were all amazed and glorified God. और इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, We have never seen anything like this before. हमने ऐसा कभी नहीं देखा। Jesus healed the paralytic. यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को चंगाई दी। He also forgave his sins. और उन्होंने उनके पाप की भी क्षमा दी। A lot of people say this man was paralytic because of his sins. That's why Jesus dealt with sin. बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसे लकवे का रोग इसलिए लगा है क्योंकि ये पाप में था। It's not true. लेकिन ये सच नहीं है according to me. मेरे अनुसार। Because if he was struck by paralysis only because of his sins, then when Jesus said your sins are forgiven you, immediately the paralysis would have gone and he would have got up then and there. क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर यीशु मसीह ने उसे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो तब के तब उसे उठना चाहिए था, उसे ठीक होना चाहिए था और वो चलना चाहिए था। If it was only because of his sin. वो सिर्फ अगर पाप की वजह से होता तो। Once he is forgiven, he should be not sick, right? अगर उसे माफी मिली गई है, उसे माफी दी गई है, तो उसे बीमार नहीं होना चाहिए ना। But if you see, Jesus told him to get up and take up his bed and walk. Only then he got out of the paralysis.
लेकिन अगर आप देखेंगे आगे यीशु मसीह ने उसे कहा अपना खाट उठा और फिर चल, और उसके बाद ही वो चलने लगा। So pay attention to the word of God. तो इसलिए आप परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दें। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we just come before you this moment and ask you for your forgiveness. हे परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं और हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। Forgive us. हमें माफ कर, Help us. हमारी मदद कर, Lead us. हमें आगे चला, Guide us. हमें आगे चला। Help us to be really there for those who are in need. और परमेश्वर हमारी मदद कर कि जिनको भी जरूरत है हम उनके पास जाए। Help us to carry those who are in need to you. और परमेश्वर हम उन्हें लेकर तेरे पास आ सके। Jesus, we invite you to come into our house and take over. और परमेश्वर हम तुझे हमारे घर पे न्योता देते हैं और तू हमें चला। In Jesus' name we pray. और हम यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद आपने हमें ज्वाइन किया। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और आपको हमारा मैसेज पसंद आया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जिस कारण हम कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं और आप किसी ऑनलाइन सर्विस के खोज में हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हर रविवार को 11:30 बजे सिंपली बाइबल यूट्यूब चैनल में मिलते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे और वहाँ पे सिंपली बाइबल करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा सारा वीडियोस मिल जाएगा, और जो रविवार को 11:30 बजे जो लाइव सर्विस होता है वो भी आप देख पाएंगे। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको मैसेज पसंद आता है तो आप शेयर करें, और वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को देखकर आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे, और मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप का ख्याल रखें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।